Chana daksadi ka yam ngani yam bo hajia jukso chana nga street looks bet ki yaumulla something important in or jak bajak de nuk bumi te datang skating chenu. Chana dirin se yaumulla pu yaras ga chuk chikte jo اور جق بجق لو بالو دینو یامولین بمونی سنگ پارٹیسپیٹ حصہ لینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصر ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکروا بایام اللہ خدا متعلق یقی یعنی قرآن بیان سوسیت ایام اللہ ہمیشہ یعنی یوم اللہ خدای اور روز کو نیجا و نیات بزرے درنگ یعنی ایرانی 46واں سالگرد پیروزی انقلاب ایران سے یعنی کامیابی نہ فتح تھوبیت کی جخمن بلکہ یعنی اسلام کفر نہ طاغوتی اور استکبار حکومت نے کا یعنی کامیاب تھوبیت کی جخن دے فرزنا یعنی کرگلی می انے گنگما حتی خواتین کن مخصوصاً یعنی کنتی وظیفہ سے دی جخ کنیانو کہ خدای اتو بھی مینا دی جخ کنیانو اور ظالم نہ استکبار حکومت نے مقابلہ آواز اٹھائے بے مینا کرگل خواتین انہوں یعنی حجاب نڈے سے کرگل روٹ نے کبھی سود انشاءاللہ ngacang امید ہوت کہ ngacang زندہ لو سمان کو یعنی ngacang رہبری پھیق پہ پیغام پہ کلبیک زرے یعنی امام زمان پھیق پہ ظہور سکپا ngacang مظلوم نہ محروم یعنی اودے انسان کو نے حمایت یعنی اور ظالم نہ استقباری یعنی مقابل ہمیشہ اٹھائے بچن اور ngacang دیو امید ہوت یعنی ولایت فقی دی یعنی آواز پہ کلبیک زرے دی پشچم سایان انشاءاللہ تمام دنیا فقط مسلمان سامن بلکہ آزادہ انسان تمام یوت بھی انسان کن گنگما دی پشچم سایہ انہوں سے اور ایک دن انشاءاللہ آواز اٹھائی بس اچھی امام زمان پھیقو ظہور شایت پی دی پشچم پہ امام افتاد پہ اور امام زمان پھیق پہ پشچم سایہ گنگمس انشاءاللہ ایام ویت اچھا امید ہوت انشاءاللہ خداوند متعالی پھیقو چنگن یا شخص امام زمان پھیق پہ ظہور انک تعزیز شزد بس یا اللہ شانا ngata diong zarba chinduk jo dio Iran in فتح دی ایران لا فتح تو بجاقین لیکن کرگل لا معنی چه بسی dio زر سوال بچن ایرانی نهضت کو یونس بکن افتک یعنی امام خمینی پھیق قیام یونس بکن افتک انت تاریخ انسلنا نا اصلا منا ایک استکباری حکومت چک دنیا تے اصلا معنویات کو ختم سوسیت پلو اصلا یعنی دین من زندگیانو کو اجرا بچاؤ اور معاشرہ دین دکچس پو حکومت یا سیاست یعنی دین دکچس پو اصلا منا یعنی کھوس منا دی ملاک مشیس پت پنسک اور ایسے ظالم خونخوار حکومت کا تلدانیت پنسک ظلم نہ جوریت پنسک اصلا دین نہ سیاست الگ سو سے زندگی یعنی سوسی کا درد وایت پہ معنویت او دی من نام و نشان میں پنلو بلکہ امام خمینی پھیق پہ نہزت کنے ارتک دیس دنیا یعنی این غلامی اندک چسپ پشیتیا نبی اور دین ہم زندگیاں ہم معاشرہ ہم یعنی سیاست یعنی کیوں مسوں اور دنیا تیاں زندگی یعنی انسان کو پر سکون چک امید چ پیدا سوں زندگیاں جو آتی یعنی کرگل پریسان فقط ایران دن نہ میں چیز در حمایت بنا کتو آواز اٹھائی بنا بلکہ دنیا تیاں انسان گاؤں آزاد سومیت کی غلامی اور استکباری غلامی آزاد سومیت پہ جخ منائی باشند حاجیہ خیرالنساء موجود ہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرگل میں یوم اللہ منانے کا مقصد کیا ہے تھوڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین حبیبنا و حبیب نفوسنا طبیب ذنوبنا بأبی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم یا کریم اولاً میں خداوند متعال کی بہت شکر گزار ہوں کہ مولا نے مجھے اس ایسے جلوس میں شامل ہونے کا توفیق دیا اور میں خدا کے در پہ شکر گزار ہوں سر جھکا کے بیٹھی ہوں میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ انہوں نے پروردگار دو جہان نے مجھے اتنی توفیق دی کہ میں اس جلوس میں شامل ہو جاتی جو یوم اللہ جو ہے وہ ایک ایرانی دن نہیں ہے یہ ایران میں منانے کی یعنی یہ ایک
इस्लामी दिन है। ये इस्लाम को फैलाया गया दीन को फैलाने वाला दिन कहा जाता है। जो ही यौमुल्लाह इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जब यौमुल्लाह ईरान में आज़ादी मिली तो सबसे पहले हिजाब का मसला उठा। इतने शहदा को वहाँ शहीद होने के बाद ये कोई आसानी से तो हमें मिला नहीं। जो हम आज देख रहे हैं हमारे करगिल में माशाअल्लाह बाहिजाब हो के माएँ बहनें मेरी बेटियाँ बाहर निकलती हैं, इन जुलूसों में निकलती हैं। हम खुदा का शुक्र करती हैं जो अगर इनकलाब ईरान नहीं होता, आगा ख़ुमैनी ने ख़ामेनी अभी हमारे रहबर ने इतनी ज़हमतें नहीं उठाई होती तो इसराइल जैसे अमेरिका जैसे मुल्क को हमारे रहबर के सामने झुकना नहीं पड़ता। ये उस परवरदिगार दो जहान हमारे इमाम ज़मान की देन है। तो हम शुक्र करते हैं जो करगिल में भी आज उस इनकलाब की वजह से यहाँ भी इनकलाब बरपा हुआ है। आज हमने अपनी चादरों को पहनना सीखा है, हमने अपने पर्दे को किस तरह से पहनना है, हमें जामिया में किस तरह से जाना है, हमें जामिया में जाके अपना किस तरह से दिफा करना है। ये सारे हमें इनकलाब की वजह से मिला है। जो हमें इनकलाब की वजह से आज हम फ़ख्र से सर उठा के चल सकते हैं, हम कह सकते हैं हम इस्लाम हैं। इससे पहले आपने देखा होगा शाह की हुकूमत के दौरान ईरान में इंसान खुल के अपना पर्दा नहीं कर सकता था, हरमों की बेहरमती होती थी। हम जाके ये नहीं कह सकते थे कि हम शियायान अली हैं, हमें पर्दे की कोई इजाज़त नहीं थी। हम बाज़ारों में हम ऐसे घूमते थे जैसे आज से पहले कई साल पहले हमारे आबा व अजदा घूमते थे। लेकिन हम इस इनकलाब के शुक्रगुज़ार हैं, हम आगा ख़ामेनी और ख़ुमैनी के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें ये प्लेटफार्म दिया। हम जहाँ पे आके इस बाहिजाब के साथ मर्दों के साथ शाना बशाना होके अपने मकसद के लिए अपने जो हमारे यहाँ पे ज़रूरतें हैं हम इस इस्तक़बाल जहान को दिखा सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। इस्लाम ने हमें यही दरस दिया है जो हमें इनकलाब ने यही दिया है। आज करगिल में आप देख रहे हैं इससे पहले जो ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं, आज हमारे यहाँ पे हिजाब की इतनी पाबंदियाँ नहीं थी, लेकिन माशाअल्लाह हम खुदा का शुक्र करते हैं। हमारे आपने कल ही देखा होगा हमारे मुसाबिक़ों में कुरानी मजलिसों में हमारे औलादे जो है हमारे बच्चे हमारे लड़कियाँ हमारे लड़के फ़र्स्ट पोजीशन के उन्वान से आ रहे हैं। तो हम फ़ख्र करते हैं ये उस इनकलाब की बदौलत है। जो अगर हमें इनकलाब की साये में ज़िंदगी करने का मौका नहीं मिलता तो हम शायद हमने नौनिहालों को इस राह पे ले के जाने की ये नहीं करते, कोशिश नहीं करते। हम खुदा से दुआ करते हैं खुदाया ये हमारे रहबर मुअज़्ज़म जो हैं इनके दस्त मुबारक से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दस्त मुबारक तक ये परचम पहुँच जाए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा बता दें ये स्टूडेंट्स हैं। इस यौमुल्लाह के मौके पे क्या कहेंगे? अभी हम देखने को मिल रहा है कि इसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन ने भी शिरकत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमुल्लाह का दिन इमाम के इनकलाब के बाद मनाई जा रही हर जगह पर। जब ईरान ने शाह से फतह होकर अमेरिका या ब्रिटिश तमाम दुश्मनों से फतह होकर जब ईरान कामयाब हो गया तो इस दिन को इमाम ख़ुमैनी ने यौमुल्लाह राम रखा था। यौमुल्लाह के बाद से जो इनकलाब सिर्फ ईरान में नहीं हुई बल्कि हर जगह पे इनकलाब रोनुमा हो गई थी। अभी करगिल में भी इनकलाब की बुनियाद यौमुल्लाह की बुनियाद शेख मोहम्मद ज़ाकिरी ने रखी थी।
पहले पहले कम थे, इसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन में भी बेदारी आ गई, बच्चों में भी बेदारी आ गई। और सबसे यौमुल्ला का सबसे पहला फ़ायदा यही था कि जो नौनिहाल बच्चे उनको भी पता चल गए कि हमारे दुश्मन कौन हैं। आपको एक बात बताते चलूँ, बहुत अच्छी बात, जब मैं मकतब में बच्चों को पढ़ा रही थी तो मैंने बच्चों को अपने एम्स के बारे में पूछा था, मकसद के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मुझे आर्मी बनना है। तो उसमें से मेरे बच्चे ने बोला मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो उसने कहा इसलिए साइंटिस्ट बने कि मुझे इस्लाम का नाम रोशन करना है। तो दूसरों से पूछा जब मैंने क्यों आर्मी बनना है, तो उन्होंने दुश्मन कहा कि दुश्मन को मारना है। तो जब कहा कि दुश्मन कौन है, तो बहुत सारों को पता नहीं था कि दुश्मन कौन है, लेकिन मेरे बेटे ने बोला अमेरिका और इसराइल को मारना है। तो मैंने कहा क्यों अमेरिका और इसराइल को मारना है? क्योंकि उन्होंने हमारे इस्लाम को क्या किया है, नाबूद करने की कोशिश किया है। यानी अभी छोटा बच्चा है, ये यौमुल्ला का समर है, यौमुल्ला का नतीजा है कि नौनिहाल बच्चों को भी पता चल जाता है हमारा दुश्मन, असली दुश्मन कौन है। वो बोलता है अमेरिका व इसराइल को मारने के लिए हमें क्या बनना है, आर्मी बनना है। इस्लामिक स्कॉलर मैं यही कहना चाहूँगी, माशरे में हमेशा हर दो तरह के होते हैं, एक हक पे होते हैं, एक बातिल पे होते हैं, एक अच्छे पे होते हैं, एक बुराई पे होते हैं। एक अच्छी राह को इंतखाब करते, एक बुरी राह को इंतखाब करते। यौमुल्ला का मतलब बाज़ार में आके नारा लगाने का मतलब यही है कि जवानों जाग जाओ, तुम लोग पता चल जाना चाहिए कि दुश्मन क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, और इस्लाम क्या बता रहे हैं जवानों के लिए कि जवानों को क्या करना चाहिए और आगे इनका मकसद क्या होना चाहिए। इस्लाम का मकसद है कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, सआदत में ज़िंदगी गुजारे, अक्लमंद ज़िंदगी गुजारे। और दुश्मन चाह रहे हैं नहीं, ग़ुलामी की ज़िंदगी करें और जो अक़ल के ख़िलाफ़ है वही काम करवाने को दुश्मन चाहता है। यही मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।